Hi, I'm Anushka Arora, a certified nutritionist, and you are watching Sehat Shala, your own healthcare channel. So today we'll be starting with a healthcare series. We have Dr. Vatsala today, who is a psychologist. It would be great if you could introduce yourself to our audience. Sure. Hello everyone, this is Vatsala Pathak. I am a psychological counselor and an art therapist. I have been working in several hospitals as a mental health professional. I work specially with children considering their different activities and health and doing a lot of art therapy with them. I also work with adults who suffer from depression, anxiety and stress. It's an honor to have you today with us here, Doctor. Thank you so much. Let's start with a question. What are the misconceptions about mental health? Thank you so much for asking this question. क्योंकि misconceptions about mental health जानने के लिए let us first understand what is mental health. Mental health basically includes 3 Qs: the psychological aspect, the social aspect and the emotional aspect. Mental health itself is an umbrella term. जब हम umbrella term बोलते हैं इसका मतलब उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसा कि हमने मेंशन किया psychological Q. What exactly includes psychological Q? हमारे जितने भी cognitive functions हैं जैसे thinking, problem solving, creativity, attention, ये सारे aspect जिसमें कहीं ना कहीं psychological well-being included होता है is first and foremost Q that is included in mental health. The second comes emotional well-being. हम अपने इमोशंस कितने बेहतर समझ रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ हम दूसरों के इमोशंस को कितने बेहतर समझ रहे हैं. आपने कई बार देखा होगा अनुष्का कि हम दुखी हैं या हर्ट हैं, हम डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं. हम परेशान हैं या गुस्से में हैं, हम डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं. और ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है. The third Q is social well-being. हमारी लाइफ में सोसाइटी का, सोशल लाइफ का कितना इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं ये आप और हम दोनों बहुत अच्छे से समझते हैं. सोशल लाइफ हमारे ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है. तो सोशली चीज़ों को समझना, सोशल गैदरिंग में एक स्पेसिफिक बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल वेलबींग में आती हैं. So the 3 Qs includes the concept of mental health, that is psychological well-being, social well-being and emotional well-being. So now that we are clear about what mental health is, let's come on to the question that you have asked, the misconception. हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मेंटल हेल्थ को सबसे पहले तो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, और अगर मेंटल हेल्थ टर्म आ गया तो हम इसको कहीं ना कहीं किसी के क्रेज़ी या मैडनेस से जोड़ देते हैं. अच्छा, इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तब तो इनको पागल खाने की ज़रूरत है. दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. मेंटल हेल्थ डजंट मीन दैट यू आर हैविंग अ मेंटल इलनेस that is being conceptualized as mental retardation या intellectual disorder. सिर्फ यही चीज़ों को हम mental उसमें नहीं गिनते हैं. mental health मेरी, आपकी, किसी भी individual की लाइफ में बहुत important role play करती है. बहुत बड़ा conception है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई person का mental health negative है तो वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर सकता है, वो एक अच्छी नौकरी नहीं कर सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो उसका एक अच्छा फ्रेंडशिप का सर्कल नहीं हो सकता है. ये कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको अगर हम 21st सेंचुरी में दूर नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो शायद इनसे फाइट करना और भी टफ हो जाएगा. That was really insightful and I really think कि mental health के around एक बहुत ज़्यादा taboo है कि people don't acknowledge it. That is what I think you mentioned, which is really visible in the society. कि लोग mental health पे focus ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है अगर वो एक issue put up करेंगे या किसी को बताएंगे कि उन्हें कोई problem है
कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पीपल विल कंसिडर कि अच्छा ये तो मेंटली रिटार्डेड है, दे आर मैड पीपल, वी शुड नॉट टॉक टू देम, एंड दैट सोशल डिस्टेंस देन स्टार्ट्स कमिंग अप. True. So I think this is a very important concept that we did talk about and we did cover in our discussion today. True. Also Anushka, one of the point that you raise I really appreciate कि हम उसे फैमिली में भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं. अगर कोई बच्चा है वो कह रहा है मम्मी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे आजकल, तो बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट हो सकता है आपने पूछा अच्छा स्कूल में लड़ाई हुई है क्या, नहीं. फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, नहीं. टीचर ने पनिशमेंट दिया है, नहीं. अच्छा फिर तो तुम नाटक कर रहे होगे. ऐसा नहीं है. हो सकता है बच्चे को अंदर से नहीं अच्छा लग रहा हो सकता है उसे स्ट्रेस हो किसी चीज़ का. तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग कि मेंटल हेल्थ जैसा कुछ होता भी है. And you know, it's not just mental health. I think there are so many things that gets impacted because of the mental health. Be it your eating habits, you start stress eating. Some people just stop eating when they are, you know, mentally disturbed, or if there's something going on in the family or around them. So I think so many issues come up with just one concept of mental health. It impacts so many other departments as well. True, very true, very true. Because आपकी मेंटल हेल्थ जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर वो आपका साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल वेलबींग इंक्लूड कर रहा है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप ये तीनों चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं. आपकी ईटिंग हैबिट, आपकी स्लीपिंग हैबिट, जैसा कि आपने मेंशन किया, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही विजिबली नोटिसेबल रहती हैं, बट वी टेंड टू इग्नोर इट एट टाइम्स, जिसको लास्ट में कहीं ना कहीं जिसका रिजल्ट बहुत ही स्केरी निकलता है. Also, could you please tell like how do we spot depression, and like because depression is something which comes to our mind the first thing अगर हम mental health की बात करते हैं, so the two big things is like depression and anxiety. So if we start with depression, so like what are the hidden signs of depression, like how can you tell that a person is depressed? Okay. सो मुझे लगता है अनुष्का जो आपने पूछा है वो आज के टाइम में स्पेशली पोस्ट कोविड सबसे रेलिवेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा है डिप्रेशन के केसेस इंडिया में हैज़ इंक्रीज्ड लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा. एंड बी इट एनी एज ग्रुप, बच्चे हों, स्कूल एकदम से बंद हो गया, स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, कॉलेज बंद हो गया, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, सब कुछ ऑफलाइन से हट के ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया. एडल्ट्स हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो गया, और हमारा एल्डरली ग्रुप हो तो उनके लिए चेंज इवनिंग वॉक रहती थी, वो भी बंद हो गई. तो अगर हम डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम की बात करें, आपको सबसे बेसिक सिम्टम दिखेगा कि पर्सन में होपलेसनेस और वर्थलेसनेस आने लगती है. आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपकी फैमिली में है जो बार बार इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहा है कि मेरा तो अब कोई यूज़ ही नहीं है, मैं तो बहुत वर्थलेस हूँ, कहीं मेरा तो अब लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो एडजस्ट ही नहीं कर सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पर्सन इनडायरेक्टली चीख के ये बता रहा है कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सी ये है कि वो किसी को बताना भी नहीं चाहता है कि वो डिप्रेशन में है. आपने एक टर्म यूज़ किया हिडन साइन. हिडन साइन को आजकल रिकॉग्नाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. हम सब आज सोशल मीडिया की दुनिया में हैं. कोई ऐसा नहीं होगा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर ना यूज़ करता हो. और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना तो हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट. कहीं अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना उस एंगल पे रखते हैं जहाँ फ़ोटो एकदम स्पॉटलाइट में आए, फ़ोटो खींचते हैं और स्टोरी डालते हैं. हम उस स्टोरी को तो लाइक कर देते हैं, लेकिन क्या उस स्टोरी पे हम ध्यान देते हैं जहाँ पे किसी ने सैडनेस से रिलेटेड कोई स्टेटस डाला है, जहाँ पे किसी ने एक बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है अकेले ऐसी पोस्ट डाला है, या ये लिखा है कि लाइफ इज़ वर्थलेस या फीलिंग अलोन, क्या इन स्टेटस पर भी हम उतना ही ध्यान देते हैं? हिडन साइन में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में ये देखा गया कुछ रिसर्चेस में
कि जहाँ पे DSM-5, हम सब जानते हैं कि DSM-5 इज़ द डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को मेंशन किया जाता है, जहाँ वहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स मेंशन किए गए। उसी दौरान कुछ रिसर्चेस हुई जिनमें ये देखा गया कि पर्सन अगर इमोशनली वेलबींग उसका नहीं अच्छा है या मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए कन्वे करने की कोशिश करता है। डिप्रेशन एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाता तो है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि कोई आए और उसकी उस परेशानी को सुने भी। अब बीइंग एन अवेयर सिटीज़न ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्हीं हिडन साइंस को पकड़ना। अभी हम लोग मेंटल हेल्थ को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात डिस्कस की कि ओवर ईटिंग होने लगती है या लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगता है। आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का बहुत कॉमन सिम्टम है कि पर्सन या तो ओवर ईटिंग करने लगेगा एंग्जाइटी की वजह से, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। तो आप ईटिंग हैबिट्स को देखिए। इसके साथ साथ दूसरा साइन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होता है हमारी स्लीप साइकिल। हमें नींद आना बंद हो जाएगी अगर हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी स्लीप साइकिल इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि शायद हम 24 घंटा नहीं सो रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब बढ़ने लगेगा। तो अगर मैं ये एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपने आसपास, अगर हम ऑफिस में हैं तो अपने कलीग्स की इन हैबिट्स को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत नोटिसेबल रहती हैं, और एक डिप्रेशन में जा रहा पर्सन वो किसी भी स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज, मॉडरेट या सिवियर, वो ये बिल्कुल चाहता है कि कोई आए, लेकिन वो खुद कहीं जा नहीं पाता है। खुद जाके नहीं बताना चाहते। True. I think there are two kinds of people. Some people are there who want to go out there and who go out there and who show the signs, and some people I think are those who just go into their own isolation. True. They won't talk, they won't tell, they just start distancing themselves from everybody, from True. Everything that they used to enjoy earlier. True. Like be it Instagram stories. Like personally, this is an experience that I've seen within my friend circle, that my friend started distancing herself. Earlier she was posting 10 stories in a day. Okay. Then eventually she started posting 2, then 1, then she went offline and she deleted her account. So I think there are two kinds of people, two bipolar things. Very very true. Also लोग बिल्कुल ये बताना नहीं चाहते हैं कि उनको कुछ हुआ है। यहाँ पे तो देखिए सोशल टैबू ये जो है डिप्रेशन के साथ, कि अरे डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है। क्यों? अगर टाइफाइड जैसा कुछ है, अगर मलेरिया जैसा कुछ है, अगर कैंसर जैसा कुछ है, तो जो इन चीज़ों को चला रहा है, जो हमारी बॉडी को चला रहा है, मेंटल हेल्थ जैसा क्यों नहीं है? अगर बुखार होने पर हम फिजिशियन को कंसल्ट कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगने पर हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी ने ये टैबू जोड़ दिया है कि डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं है। जैसा आपने कहा कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने अपनी फ्रेंड का बताया कि धीरे धीरे करके वो स्टोरी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इतना कॉन्शियस होकर इस चीज़ को नोटिस किया। वरना लोग तो अच्छे वाले ऐसे स्लाइड कर देते हैं कि अरे ये तो बड़ा रोतलू सा स्टेटस लगा दिया है, जबकि शायद उन 10 में से वो रोतलू वाला इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो अपने इंटरेस्ट आप देखिए कि ऐसी चीज़ें जो पर्सन को करना बहुत पसंद थी, कोई बहुत पार्टी वाला बंदा था, बट अचानक से ही और शी हैज़ विदड्रॉन, आइसोलेशन में चला गया है, सोशल विदड्रॉल हो गया है, कुछ बन रहा है, नहीं खाने का मन कर रहा है, क्यों नहीं खाना है बेटा। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, इतनी जो पर्सन फील करता है, आई रियली विश कोई इसको सफ़र ना करे, लेकिन इट इज़ वेरी सैड कि इंडिया में डिप्रेशन का रेशियो बहुत बढ़ गया है। अंदर से जो पर्सन उसको फील कर रहा है, इट इज़ रियली स्केरी। और एक मेडिसिन का काम ये भी करता है, जब हम किसी से ये पूछ लेते हैं कि तुम ठीक हो ना, तो प्लीज़ डू विज़िट अ पर्सन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि
उसको अपने इंटरेस्ट से हट के वो चीज़ें अब नहीं करना चाह रहा है, सोशली अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, उसके स्लीपिंग ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, तो विजिट द पर्सन एंड आस्क कि आर यू ऑल राइट? I think that is very important, just to be conscious about the things happening around us. True. Just paying attention to little things that happen. We always see the highlights of the people's lives, but also there are some sad and some shady parts along with those happy and the high points in life, but I think nobody wants to see them. True, So very instead of true. ignoring it, I think we should pay equal attention to it in these times, because times are changing. Yes. Mental health, if you talked about it 20 years ago, it wasn't that much of a important topic because not a lot of people were suffering from it. But I think eventually the rates of people suffering from depression, from anxiety have also increased. True, very and if true. somebody is suffering, they should definitely consult a therapist or a psychiatrist or a psychologist, because I think there are always people there to help. You just need to ask for it. बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल आप पहुँचेंगे नहीं, शायद हम चाह के भी आपको फिर हेल्प कर नहीं पाएंगे. Right, and people just come when they have hit the saturation point and things have just gone above and beyond their head. Then they think, अच्छा okay, शायद कुछ गलत है. True. हमारे को किसी को visit करना चाहिए. So it is obviously better, I think, in any perspective, if you see even in obesity or health-related disorders or mental health or in perspective of any disorder or health-related thing. I think it's very important कि हम starting stages में ही किसी को consult करें, ना कि तब जब हमारे हाथ से चीज़ें बहुत निकल चुकी हो. वेरी ट्रू, क्योंकि हम शायद बुखार तो एक बार थर्मामीटर के टेम्परेचर से कर लेते हैं क्योंकि वो एक मशीन बता दे रही है, लेकिन एक फिज़िकल बॉडी भी अपने बिहेवियर से कहीं ना कहीं ये रिवील करती है कि ही और शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, तो हम उसको भी एक्नॉलेज करें, ठीक वैसे ही जैसे हम अदर डिजीज़ेस को एक्नॉलेज करते हैं. I think the body is so powerful as a mechanism and it is so strong that even if there's slightest thing wrong in our body, it indicates in our own matters. Your face glows other days, and if you are feeling down or if there's something wrong, firstly it shows on your face. Even if you're sad, it comes on your face. It shows in your hair, it shows in your nails, it is in your whole aura around you. So I think it's very important that we notice ourselves first before other people should notice us. I think हमें खुद भी अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर देते हैं in our whole hustle of life. We sometimes tend to neglect our own health, our own bodies. True. So doctor, what do you think are the positive changes that people should make in their day-to-day lives to just help them with the challenges of life? Okay. So I think I will be including both the aspect. ये जो positive changes की मैं बात करने जा रही हूँ, ये even if you are not suffering from any type of mental health issue तो भी helpful रहेगा, and even if you are suffering it will be helpful. So there are some basic things, जैसे आप अपनी फैमिली इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए. एक फैमिली टाइम होना हम सबका ज़रूरी है, जैसे कि बहुत एक आपने पोस्ट देखे होंगे चलते हैं, इट्स माई मी टाइम. मी टाइम करके बहुत सारे बैनर्स भी आने लगे थे बीच में, उस ट्रेंडिंग. हाँ, तो वो मी टाइम आई रियली अप्रिशिएट इट, इट्स वेरी गुड, बट लेट्स एक्सटेंड इट टू फैमिली टाइम. हम एक बार ऐसा टाइम ज़रूर हो जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक दूसरे से ये पूछें कि अच्छा मम्मी व्हाट इज़ गोइंग इन योर लाइफ. मम्मी तो इज़ समबडी जो पूरे घर को देख रही है, उनकी मेंटल हेल्थ तो इज़ वेरी नेसेसरी. अच्छा पापा, हाउ इज़ एवरीथिंग इन योर ऑफिस. दीदी, हाउ इज़ एवरीथिंग इज़ इन योर ऑफिस. और फिर हमसे भी ऑब्वियसली समबडी विल आस्क. तो वी शुड हैव अ फैमिली टाइम जहाँ पे हम एक दूसरे को इतना कंफर्ट जोन दें और इतना टाइम निकालें. अगर हम 10 घंटा 12 घंटा ऑफिस कलीग्स के साथ निकाल रहे हैं, तो क्या हम बचा हुआ कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हम अपना एक फ़िक्स रूटीन ऐसा रखें जहाँ पे हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हों. जैसे हम मेडिटेशन करें, योगा करें,
देखिए पोस्ट कोविड के बाद कुछ चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव आई, लोग वापस से नेचुरल चीज़ों की तरफ भागे, जिसमें कहीं ना कहीं मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी शुड हैव दिस इन आवर रूटीन, जहाँ पर हम कुछ टाइम में बी 15 मिनट्स ओनली, बट वो हम अपनी बॉडी के लिए निकालें। दूसरी चीज़, आप वो एक्टिविटी ज़रूर करिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। अपनी हॉबी को कभी मत छोड़िए। अगर हम पूरे दिन ऑफिस में नहीं अच्छा लगता है जब बॉस एक फ़ाइल ले आके दे देते हैं, पर हम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, भले मन में एक ग्रज के साथ करें, अरे घर जाने का टाइम था बट ही लोडेड मी विद दिस। तो आपके अपनी इच्छा से आप वो काम क्यों नहीं ऐसा करें, कोई जो आपकी हॉबी का हो, जो आपकी पसंद का हो। हम सबको अगर मैं ये पूछ दूं, आप ये चीज़ अपनी सब लोग अपने घर पे अपनी मदर से पूछिएगा कि मम्मी तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों के लिए करते करते शायद अपनी चॉइस भूल गई है। हमने भी अपनी मेंटल हेल्थ के साथ यही कर लिया है। दूसरों को प्लीज़ करते करते, खुश करते करते हम ये भूल गए हैं कि मेरा खुश रहना और मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी कोई एक हॉबी कभी मत छोड़िए, उसको लेट इट बी अ ड्राइंग हो, डांस हो। अगर शर्म आ रही है तो रूम बंद करके डांस करो, किसने मना किया है, लेकिन उसको छोड़ो नहीं। म्यूज़िक सुनना है, कोई एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, जस्ट फॉलो योर हॉबी। दूसरी चीज़, आप एक अपने आप के इमोशन से रिलेटेड एक डायरी राइटिंग करिए, जिसको आजकल जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, क्योंकि जब हमारे अंदर के इमोशंस निकल जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो कहते हैं कि हमारे अंदर फिर वो जो एक नेगेटिव इमोशंस का नॉट्स होता है वो नहीं बनने पाता है। तो प्लीज़ डू जर्नलिंग, टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ, एंड एक दिन में किसी एक पर्सन से ज़रूर पूछिए कि आर यू ओके। You know, I think you raised a very important point, just to ask people if your day went well. Because अगर आप किसी से पूछोगे तो कभी वो आपसे भी पूछेगा एंड आपको नहीं पता, क्या पता तब आपको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो। So I think that thing really works, that what energy you give, you get that energy back at some point of your time. True. And also hobbies and you know doing what you like, I think it is very important. Obviously, if you're giving half of your day to things that you do not like, you can give just 20 or at least 10% of time to something that you like, so that you know you're able to cover up the whole 90% of the other work that you have been doing. Very true. And when you start neglecting that 10% of your me time or something what you like, or doing something that you like during that time, I think you just start adding to your negative points, and uske baad it becomes a whole big thing, and uske baad that becomes a stage 2 gone far. Yes. And uske baad aapko lagta hai, then that becomes very alarming ki okay, I have been neglecting myself for so too long. And then as you said, people forget that मेरे को पसंद क्या था. That stage comes because you have been neglecting yourself for so too long कि अब आपको पता ही नहीं मुझे पसंद क्या था. Which is a very scary stage to reach. I think this can be a part of homework to the audience as well, कि at least आप सब इस चीज़ को खोजिए, अपने अंदर से ढूंढिए और अपनी डायरी में पहले पेज पर ये लिखिए कि आपको क्या पसंद है। मुझे लगता है बहुत ऐसे होंगे जिन्हें सोचने में ये वक्त ज़रूर लगेगा कि क्या उन्हें पसंद है, लेकिन जब याद आ जाएगा तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होगी। तो लेट्स जस्ट रिकॉल एंड राइट कि मेरी पसंद क्या है। And I think journaling is also a very good thing. Like I advise it to my clients as well कि आप लिखो आपको क्या खाने के बाद या आपको क्या करने के बाद how did you feel? Like did you feel good after eating some junk, or did you feel good after eating something healthy? Very true. Like did you enjoy sitting home while your friends were out, or did you wanted to go out with them, and did you eventually go out with them or not? Because these are small things that we tend to neglect. और अगर हम इनको लिखते हैं
तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई काउंसलर है या थेरेपिस्ट है तो उनको भी समझाने में आसानी होती है, क्योंकि यू नो दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन जर्नलिंग सिंस मंथ्स, just help me out with this is what my mental health is, this is what my current scenario is. True. Because otherwise it's just that it is very time consuming to get to know a person, and if somebody is in a habit of journaling, it helps to clear their thoughts as well as our thoughts as well about how we can help the person be more better version of themselves. Yes, अनुष्का, आपने जो कहा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक टर्म यूज़ किया कि वी टेंड टू निगलेक्ट थिंग्स, और जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी कहानी तो निगलेक्टिंग से ही शुरू हो रही है। तो इंस्टेड ऑफ निगलेक्टिंग हमें एक्नॉलेज करना अपनी चीज़ों को, और जर्नलिंग, जैसा कि वी हैव बीन डिस्कसिंग, जर्नलिंग रियली हेल्प्स नॉट जस्ट टू द काउंसलर और द थेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड यू, इंस्टेड इट हेल्प्स योर सेल्फ ऑल्सो, कि आप भी अपने को समझ पाते हो। आप एट द एंड ऑफ द वीक ये देखते हो कि इस वीक में मैं कितने इमोशंस से गुजरा, या मुझे कितनी बार अच्छा लगा, कितनी बार बुरा फील हुआ। तो इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन हिमसेल्फ ऑल्सो। सो यू नो देयर इज अ, आई थिंक एवरीबडी हैज अ पैटर्न, एंड वो पैटर्न एट द एंड ऑफ द वीक अगर आप जर्नल कर रहे हो तो आपको खुद दिखने लग जाएगा कि मैंने ये करा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने नहीं करा तो मुझे नहीं अच्छा लगा। So doctor, can we actually prevent the mental health disorders and the challenges that come with it? Like, what's your take on this? Okay, so I would start with this with another question. Anushka, do you think fever can be cured or a typhoid can be cured? Yes, definitely, if taken and if had a right approach to it. Very true, the right approach. सो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। द थिंग इज़ द राइट अप्रोच। सारी कहानी निगलेक्टिंग से अगर शुरू होती है तो राइट अप्रोच पे ख़त्म होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी ही नहीं होती है कि किसी चीज़ को हम वहीं पे एज इट इज़ छोड़ दें। हमारे अंदर तो एक नेचुरल क्यूरोसिटी होती है। आप एक बच्चे को देखिए, हमेशा छोटे पे एक ही चीज़ 10 बार पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, और वो तब तक नहीं हार मानता है जब तक उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता है, विद दैट क्वेरी। तो ऐसी कोई क्वेरी नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेंटल हेल्थ, नेगेटिव मेंटल हेल्थ का क्योर बिल्कुल है, मेंटल हेल्थ इलनेस का क्योर बिल्कुल है। इसमें थेरेपिस्ट का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना इम्पॉर्टेंट रोल थेरेपिस्ट के पास जाने वाले क्लाइंट का होता है, क्योंकि जब तक आप ये डिटर्मिनेशन नहीं लेंगे ठीक होने का, तब तक थेरेपिस्ट आपको वो रास्ता नहीं दिखा पाएगा। Ultimately, you are the one who needs to walk on that path. So there is 100% solution for this, but you have to take the right approach. Please do not hesitate to reach out a mental health professional. If you don't hesitate to reach out to other professionals for other problems or diseases, same is with your mental health. Don't hesitate and don't feel shy about it. I think what you mentioned, that as important as the role of a therapist, equally is important of the role who comes to the therapist. True. I think taking that first step is what matters the most. Yes. Because आगे की जर्नी बहुत easy हो जाती है अगर आप इतना effort करके एक step लेते हैं तो। बिल्कुल। Because आगे की जर्नी you have people to help you with, but the first step that you need to take has to come from within. True. और हम किसी भी चीज़ को, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको उसके वर्स पे पहुंचने का वेट ना करें। अगर आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं कल का वेट क्यों करूं कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप? क्यों नहीं मैं आज ही थेरेपिस्ट के पास जाऊं? क्यों नहीं मैं आज ही हेल्पलाइन नंबर को डायल करूं? और क्यों नहीं मैं आज ही कहीं इंटरनेट पे बाकी कोई सीरीज सर्च करने के बजाय आज मैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का नंबर सर्च करूं? तो लेट्स नॉट वेट फॉर थिंग टू बिकम वर्स, रैदर इनिशियली ही हम जाएं एक प्रोफेशनल के पास। That was really insightful and that was really inspiring what you told us, and I think our audience will benefit from that as well. Thank you so much for coming to our platform today.
Thank It you was a so pleasure much. hosting you. Thank you so much, Anushka. Thank you for raising such beautiful questions and helping all of us.